We are studying about inflation, that how we define inflation, how we measure inflation. In most simple wording, increase in general price level over time is called inflation in the economy. We explain in the last lecture inflation with the help of quantity theory of the money. According to quantity theory of money, inflation is a monetary phenomena, means that the cause behind the inflation is increase in the money supply over time. Money supply means currency in circulation, the total amount of money, जिसमें coins है, loans है, credit है, मतलब check. Most liquid form of money is currency, and we also include the other forms of currency. According to quantity theory of money, MV is equal to PQ, where M is money in circulation, V इसकी velocity of circulation, P means general price level. अगर ये increase होगा तो हम कहेंगे inflation increase हुआ है. Q means quantity of goods and services produced. For any given period of time, Q means quantity or GDP is fixed, and money supply के अलावा जो velocity of circulation है कि एक करेंसी यूनिट कितने हैंड चेंज करता है ड्यूरिंग द गिवन पीरियड, तो ये भी लोगों के टेस्ट के अकॉर्डिंगली वी से दैट इट इज आल्सो फिक्स. सो व्हेन एवर देयर इज increase in money supply, there is increase in the price level. So inflation is a monetary phenomenon. इन इसकी डेफिनेशन अगर आप लिखेंगे तो इन्फ्लेशन इज अ persistent increase in the general price level of goods and services in economy over a period of time. Over a period of time आप स्पेसिफाई कर लेंगे कितने टाइम पीरियड के लिए हम मेजर कर लें, and for that period of time is general price level is increasing over time, we will say that it is inflation in the economy. What causes the inflation? According to quantity theory of the money, increase in money supply will lead to increase in general price level. So money supply has a direct proportional relationship with the price level. ये चीजें हमने पिछले लेक्चर में देख ली थी. मनी ग्रोथ का रिलेशनशिप मनी सप्लाई के साथ इस ग्राफ में गिवन है कि ओवर द टाइम अगर ब्लू लाइन जो सी है वो इन्फ्लेशन को शो करती है, देन growth in money supply जो सी है वो रेड लाइन से है, एंड इन्फ्लेशन इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन इन विच द मनी ग्रोथ इज मूविंग ओवर टाइम. MV is equal to PQ. It is the basic equation for the quantity theory of money, and इसमें V and Q usually we take them as the exogenous variable. And M is the money supply, V is the velocity of the money circulation, P is the price level, Q is the total output. In the long run, the velocity of the money and the total output are exogenous. If all other factors are held constant, an increase in the M will require an increase in the P. Thus, an increase in the money supply requires an increase in प्राइस लेवल और इन्फ्लेशन. ये मोस्ट सिंपल एक्सप्लेनेशन है इन्फ्लेशन की इन द लॉन्ग रन. After introducing the inflation, we will study that how we measure the inflation. Inflation is measured as a percentage rate of change in the level of the prices over time. Economists typically measure the price level with the price index. A price index is a number whose movement reflects the movement in every level of the prices. If price index rises 10%, it means that every price level has risen by the 10%. स्टेट्स में तो ये आपके लिए बिल्कुल सिंपल बात है. इंडिसेस के जरिए मैयर करना कि हाउ वी मैयर द इंक्रीज इन एनी वेरिएबल. प्राइस इंडेक्स जो हम कैलकुलेट करते हैं, इट इज़ द कास्ट ऑफ द बास्केट ऑफ गुड फॉर अ बेस ईयर हम ले लेते हैं, और उससे कंपैरिजन में जो भी ओवर टाइम चेंजेस आती हैं, अगर आपका बेस ईयर है उसको हम अगर 100 के इक्वल फिक्स कर लेते हैं. आपके करंट ईयर का अगर प्राइस इंडेक्स जो सा 103 आ रहा है, तो इट्स मीन द इन्फ्लेशन रेट इज 3% एज कम्पेयर टू द बेस ईयर. इसमें मार्केट बास्केट ऑफ गुड है, a list of the item used specifically to track the progress of inflation in an economy or the specific market. कि आप इसमें कुछ सिलेक्टेड गुड्स होती हैं किसी मार्केट के लिए या किसी गिवन इकोनॉमी के लिए, उनको आप चूज कर लेते हैं कि इनकी प्राइसेस की चेंजेस जो होती हैं वो हमने मेजर करनी है. परचेजिंग पावर, ये दो टर्मिनोलॉजीज हैं जो उसमें हमने ओवरऑल यूज करनी है इस टॉपिक के अंदर.
परचेजिंग पावर क्या है? द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कैन बी बॉट विद द यूनिट ऑफ करेंसी आर बाय कंज्यूमर। तो परचेजिंग पावर का मैं यहाँ पे इस टर्मिनोलॉजी की जरूरत क्या है कि विद द इन्फ्लेशन परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिक्रीज ओवर टाइम। आप रुपए की वैल्यू जो जो डिक्रीज होगी, आप उसे कहेंगे कि प्राइसेस जो थी वो बढ़ेंगी, और आपका गिवन वैल्यू ऑफ जो रुपी है, या आप जितने रुपीज़ जितनी गुड्स कल या परसों खरीद सकते थे, उतनी आज अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ है तो दे आर द मनी दे इट इज़ नॉट एबल टू परचेज द सेम क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड द सर्विसेज। The inflation rate is widely calculated by calculating the movement in the consumer price index. पीछे जो हमने नॉमिनल वर्सेस रियल जीडीपी में जीडीपी डिफ्लेटर पढ़ा था, वो भी हम यूज करते हैं टू मेजर द चेंज इन इन्फ्लेशन। बट देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन जीडीपी डिफ्लेटर एंड द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो हम एंड पे देखेंगे। सो द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर मूवमेंट इन प्राइसेस ऑफ अ फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स एंड द सर्विसेज परचेज्ड बाय अ टिपिकल कंज्यूमर। आप अकॉर्डिंग टू योर इकोनॉमी, अकॉर्डिंग टू योर कल्चर, आप कंज्यूमर एक टिपिकल कंज्यूमर डिफाइन करते हैं उसके अकॉर्डिंगली कि वो क्या गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है, उनको या जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनको मुश्तमिल आप एक बास्केट ऑफ गुड्स जो से उसकी लिस्ट बना लेते हैं, और उसको कंपेयर करते हैं कि बेस ईयर में और करंट ईयर में प्राइसेस में क्या चेंज आया। Consumer price index is usually expressed as an index, which means that one year is the base year and the base year is given the value of the hundred. The index for another year, say we say अब year one क्या is calculated, कैसे आप उसे compare करेंगे कि cost of that basket of goods in one year जिसे आप current year भी कह सकते हैं, divided by the cost of that basket of goods in the base year multiplied by the hundred. The percentage change in the consumer price index over time is called the inflation rate. So it is that how we measure the inflation over time. इसकी एग्जांपल दी हुई है। इसमें बास्केट ऑफ गुड जो होती है वो किसी टिपिकल कंज्यूमर की नहीं, जस्ट फॉर एन एग्जांपल हमने सिंपल एक बास्केट ऑफ गुड ली है जिसमें ब्रेड है, जीन्स है और डीवीडीज है। अज्यूम करें कि ब्रेड अगर एक कंज्यूमर परचेज करता है तो उसकी प्राइस क्या है, $4, और जो कंज्यूमर परचेज कर रहा है वो कितने हैं, 3, तो उसकी टोटल कास्ट क्या है, 12, मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाई 4। इसके अलावा जो पेयर ऑफ जीन्स है, तो अगर एक कंज्यूमर परचेज 2 पेयर्स ऑफ जीन्स एंड द प्राइस ऑफ 30 ऑफ ईच, then total cost will be $60, and if he purchased 5 DVDs in the base year, we are calculating it for the base year, and the price is $20, 20 multiplied by 5 is equal to $100, and then 10 gallon of gasoline है, प्राइस एक की जो सी है 3.5 है, 3.5 को आप 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये $35 है। इन सबको आप अगर टोटल कर लें तो आपके पास आ जाएंगे $207, जो उसकी इस अगर उसकी बास्केट ऑफ गुड्स में ये चीज़ें शामिल हैं तो उसकी कास्ट ऑफ लिविंग हम इसे कहते हैं $207 है। अब हम अज्यूम करते हैं कि करंट ईयर में क्या हुआ कि ब्रेड की प्राइस सेम $4 है, लेकिन जीन्स जो है उसकी प्राइस अब 35 हो गई है, जबकि डीवीडीज की प्राइस अब 18 है, जो कि पहले 20 थी, और गैसोलीन की प्राइस अब जो सी है $4 दी हुई है मे बी। तो अब सेम क्वांटिटी से आप कैलकुलेट करें, मतलब उसे मल्टीप्लाई करें इन क्वांटिटी से जो हमने पीछे एग्जांपल में ली थी, तो आपके पास टोटल कास्ट ऑफ लिविंग फॉर द करंट ईयर विल बी $212। अब आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए करंट ईयर की कास्ट ऑफ लिविंग को आप डिवाइड करें बेस ईयर की कास्ट ऑफ लिविंग से, तो 2012 डिवाइडेड बाई 2007 मल्टीप्लाइड बाई 100 विल बी इक्वल टू 102.4%। और इसे अगर आप परसेंटेज में डिस्क्राइब करेंगे, दिस मीन्स दैट इन्फ्लेशन रेट बिटवीन द बेस ईयर एंड द करंट ईयर इज 2.4%। प्राइसेस आर इंक्रीज्ड by 2.4% over the time. इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन रेट यूएसए का दिया हुआ है, पाकिस्तान के इन्फ्लेशन रेट के लिए लिंक मैंने आपके नोट्स में दे दिया हुआ है, इसको आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि डिफरेंट कंट्रीज के इन्फ्लेशन रेट को आप इनसे चेक कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। प्राइस इंडिसेस में मोस्ट सिंपल जो प्राइस इंडिसेस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, आगे इनकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं जो हम कैलकुलेट करते हैं टू मेजर द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, क्योंकि सबके अपने कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, शॉर्टकम्स होती हैं।
तो आप किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है सेलेक्ट करते हैं। इधर 2 टाइप्स दी हुई हैं, लेस प्राइस इंडेक्स एंड कॉस्ट इंडेक्स। इनको हम आगे देखेंगे। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होती है? द एवरेज कॉस्ट ऑफ अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ स्पेशली ऑफ फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग। कि ये जो बेसिक ज़रूरतें हर शख्स की होती हैं, इनकी एक गिवन पीरियड में कितनी उसके लिए इनकम चाहिए। और प्राइस इंडेक्स क्या है? स्टैटिस्टिकल एस्टिमेट ऑफ द लेवल ऑफ द प्राइसेस ऑफ सम क्लास ऑफ गुड्स एंड द सर्विसेज, इट विल बी प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स में सिंपल प्राइस इंडेक्स या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो हमने कैलकुलेट किया उसके तो वही तरीका है जो कि हमने अभी देखा है। ये सेम एग्जांपल जो उनकी मजीद डिटेल में दी हुई है। अब इस पे जो लेस्पियर प्राइस इंडेक्स है और जो बास्केट प्राइस इंडेक्स है, ये भी इनका सिंपल सेम ही तरीका है कि आप बेस ईयर से कंपेयर करते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि जो लेस्पियर प्राइस इंडेक्स है, इट डिटरमिन्स द बास्केट ऑफ गुड्स ड्यूरिंग अ बेस ईयर। कि आप बास्केट ऑफ जो गुड लेते हैं उसको आपने सिलेक्ट कब करना है? ड्यूरिंग अ बेस ईयर। Find the price of this basket and then compare that to the price of the same basket of goods in the later period of time। कोई भी आपने करंट ईयर लिया, मीन बेस ईयर में 2010 में आपने कोई भी बास्केट ऑफ गुड जो होती है वो सेलेक्ट की थी, और अब आप उसके 2021 से उसकी अब की प्राइस को कंपेयर करने, तो वो आपके पास आ जाएगा लेस फेयर प्राइस इंडेक्स। जबकि पॉजिटिव प्राइस इंडेक्स में क्या है? फाइंड अ बास्केट ऑफ गुड्स, के आप 2021 में जो बास्केट ऑफ गुड लेंगे और उसकी अब करंट प्राइस को बेस ईयर की प्राइस इंडेक्स जो है उससे कंपेयर कर लेंगे। कंपेरेबल रिजल्ट्स होते हैं इन दोनों प्राइस इंडिसेस के। इसके अलावा हम दो और कैटेगरीज बनाते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उन गुड्स को कंसिडर करता है जो कंज्यूमर के व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट हैं, जबकि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स इज फॉर द प्रोड्यूसर्स। फॉर एग्जांपल, we say that the producer price index reflects the changes in the revenue that producers receive in return for the goods and the services. The producer price index, unlike the consumer price index, includes prices changes for goods produced within the USA but exported abroad. It also does not include sales and excise taxes, nor does it include distribution costs. While we often expect the consumer price index and producer price index to show similar inflation rates, that measures two different sets of price changes. GDP, बड़ा तो GDP, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये तीनों इम्पोर्टेंट इंडिकेटर होते हैं किसी भी इकोनॉमी की हेल्थ को मेजर करने के लिए। तो हमारा सब्जेक्ट तो इश्यूज इन फॉक इकानमी, लेकिन हम इकानमी किसी को भी स्टडी करने के लिए पहले ये पढ़ रहे हैं कि हमारे बेसिक इंडिकेटर्स क्या हैं और उनको हमें कैसे जज करना है। हमने अगर इन्फ्लेशन पढ़ा तो सिंपल, तो कास्ट ऑफ इन्फ्लेशन हर शख्स को पता है कि अगर आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है तो आप यू फील पुअर, यू बाय लेस गुड्स एंड द सर्विसेज। लेकिन इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में हम कुछ और इन्फ्लेशन की जो कॉस्ट है इनके लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं, तो वो हम थोड़ा सा उनकी जानते हैं वो क्या है। The cost of inflation includes, first of all, menu cost, second is shoe leather cost, third is loss of purchasing power, and the redistribution of wealth. Purchasing power, the amount of goods and services that can be bought with a unit of currency or by the consumer. Menu cost, the cost to a firm resulting from changing in prices. Shoe leather cost, the cost of time and effort that people spend try to avoid the effect of inflation. इन्फ्लेशन अगर स्टेबल हो, लो हो, तो इकोनॉमी के लिए बुरा नहीं होता। मतलब व्हेन इकोनॉमी इज ग्रोइंग, इन्फ्लेशन विल ग्रो, मीन प्राइसेस विल ग्रो, इन्वेस्टर्स के लिए इंसेंटिव होगा कि इकोनॉमी ग्रोइंग है, दे शुड इन्वेस्ट। बट लार्ज इन्फ्लेशन एंड परसिस्टेंट इन्फ्लेशन इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। इसमें मेन्यू कास्ट से मुराद क्या है? इसने अपना नाम, ये मतलब कहाँ से है मेन्यू कास्ट? इफ द प्राइसेस आर changing continuously, then restaurants and other companies have to reprint their prices again and again. So, to reprint their menu, their costs will increase, and this activity will take time. So, it is called the
menu cost of the inflation, which is that we have to change prices continuously. सेकेंड है शू लेदर कास्ट। शू लेदर कास्ट मीन कि आपके जो शूज़ हैं उनका लेदर जो उनका वो खराब हो रहा है। इसने अपना नाम कहाँ से लिया है? शू लेदर कास्ट मतलब ये टर्मिनोलॉजी का ओरिजिन क्या है कि व्हेन देयर इज एन इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी पीपल डोंट वांट टू कैश इन हैंड। लोग कैश नहीं रखना चाहते। दे पुट देयर मनी इन द बैंक फॉर द टू अर्न द इंटरेस्ट रेट or they may purchase some other asset which is not affected by the inflation. So when they do not keep their money in the cash form, they have to go again and again to the bank to get the cash. And so the leather of their shoe will be get weird and teared. So we will say that it is an old name and we know that it is shoe leather cost. A significant cost of reducing money holding is the additional time and the convenience that must be sacrificed to keep less money on hand than would be required if there were less or no inflation. कि आपने काफ़ी सारा टाइम लोन सा इस एक्टिविटी में लग जाएगा कि आपने कैश खुद नहीं रखना और उसके लिए यू विल गो अगेन एंड अगेन टू द बैंक एंड देन देर इज़ अ लॉस ऑफ परचेजिंग पावर दैट आपने कोई मनी है इन द कैश फॉर्म में रखी है। आपने सोचा था कि आप इसके लिए फॉर एग्जांपल कोई ड्यूरेबल गुड्स खरीदेंगे लेकिन आपने 50,000 की अमाउंट जब तक आपके पास आई तब तक वो रेफ्रिजरेटर या एनीथिंग जो आपने प्लान की हुई थी उसकी प्राइसेस जो उसकी इंक्रीज हो चुकी हैं यू आर नॉट एबल टू बाई। इट इज़ द लॉस ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ द मनी। एंड फोर्थ कास्ट इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ मीन के इन्फ्लेशन से क्रेडिटर और डेब्टर के दरमियान जो अमाउंट ऑफ मनी है वो इस तरह से शिफ्ट हो जाती है या वो दिया हुआ है कि वो शख्स जिसने लोन दिया हुआ है when he gave the loan at that time the purchasing power of the money was the high when he will get it back it the purchasing of power of the money has decreased so he will face some loss due to the inflation or the higher prices। इसके अलावा दो segments of society which on the physical assets they will benefit from the price rises। फॉर एग्जाम्पल किसी ने प्रॉपर्टी हो तो उसकी प्राइसेस विद द इन्फ्लेशन में इंक्रीज उसको बेनिफिट होगा लेकिन वो जिसने अपनी बनी जो सी है उसको वो रकम इकट्ठी कर रहा है कि उसने घर खरीदना है ऑब्वियसली उसको ज़ाहिर इसका नुकसान होगा कि जितने उसने कॉस्ट समझी थी उतनी अब नहीं रही अब उसकी प्राइस कॉस्ट जो सी इंक्रीज हो गई। रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट में ये है कि अनएक्सपेक्टेडली हाई इन्फ्लेशन टेंड्स टू ट्रांसफर वेल्थ फ्रॉम क्रेडिटर टू द डेब्टर कि क्रेडिटर्स ने जब अमाउंट दी थी तो उसकी वैल्यू ज़्यादा थी जबकि जिन्होंने ली है व्हेन दे विल रिटर्न इट इट्स परचेजिंग पावर हैज डिक्रीज्ड ओवर टाइम। At the end, as we already checked that what was the GDP deflator, we will compare it with the consumer price index. It is equal to the ratio of the GDP to the real GDP. The GDP deflator and the consumer price index give somewhat different information about what's happening to the overall level of the prices. There are the three main differences in the consumer price index and the GDP deflator. The first difference is that the GDP deflator measures the prices of all goods and services produced, where the consumer price index measures the prices of only the goods and services bought by the consumer. Thus, an increase in the price of the goods bought only by firms or the government will show up in the GDP deflator but not in the consumer price index। ये first difference है consumer price index का और GDP deflator का। The second difference is the GDP deflator includes only those goods produced domestically. Imported goods are not part of the GDP and do not show up in the GDP deflator. Hence, an increase in the price of the Toyota made in Japan and sold in the other country affects the consumer price index, but it will not be included in GDP deflator. And the third and the most subtle difference results from the way the two measures aggregate the many prices in the economy। ये इसमें जो वेट आप असाइन करते हैं ये आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स असाइन फिक्स्ड वेट्स टू द
prices of the different goods. Where the GDP deflator assigns changing weights, in the other words, the consumer price index is computed using a fixed basket of goods, where the GDP deflator allows the basket of goods to change over the time. इसको अब हम काफ़ी लेंथी हमारा आज का लेक्चर हो गया, इसको बाकी को हम कल देखेंगे, लेकिन एनीवे डिफ्लेशन इज अ डिक्रीज इन द जनरल प्राइस ऑफ टाइम, मतलब इन्फ्लेशन के जो अपोजिट चीज़ है, प्राइसेस आपकी डिक्रीज हो रही हैं, उसको आप क्या कहते हैं, डिफ्लेशन। या इन्फ्लेशन अगर नेगेटिव हो उसको हम डिफ्लेशन कहते हैं। और ये वो साइट है जिसका मैं आपको लिंक दे दूंगी, यहाँ पे आप डिफरेंट कंट्रीज का इन्फ्लेशन रेट कंपेयर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, इसमें पाकिस्तान का भी गिवन है। इसकी एक अलग से साइड है, पिछले लेक्चर में भी हमने देखा था, मैं आपको वो भी शेयर कर दूंगी।